Paamshala. I am Nika, channel host and your host. I have brought this video with excellent tips which has to be followed by everyone before exam, during exam and post exam. So let's quickly begin with the pre-exam tips. First is sleep. Please do not sacrifice your sleep one day before your exam. It seriously hampers your mental status and can hamper your exam as well. So I'm not telling you all to sleep 10 hours, 12 hours and 14 hours, no. Just sleep 3 to 4 hours but peacefully with a very peace mind. Second is food. Many of us ignore our fooding habits, but we should take ample care of it during our exam days. Food plays a major role on our memory power and also on our sleep. So please start eating healthy from 1 month before your exam till your exams get over. And please never overeat and go for the exam. Eat light and eat healthy. Keep your stomach a little empty so that you don't feel sleepy while writing the exam. So eat healthy but do not overeat. Third is calmness. Keep yourself calm before exam. Do not panic, do not overthink. Just concentrate on your study pattern and your syllabus. And keep telling yourself, जितना हुआ है बहुत अच्छे से हुआ है. Okay? Next is notes. I have seen a number of students carrying their textbooks to the examination centers, and I personally feel that this is not the correct approach. See, exams में हमारे mind को free होना बहुत ज़रूरी है. Okay, we need to concentrate on the exams and on the question paper. So, अगर एग्ज़ाम के 5 मिनट 10 मिनट पहले आप पूरी टेक्स्ट बुक लेके इफ़ यू गो थ्रू इट, यू कैन डू इट जस्ट बिफोर द एग्जाम. ओके, एंड उसमें फिर आपको लगने लगता है कि oh my god, what happened suddenly, I've forgotten everything. Okay, try and understand. You need to have a free and fresh mind while writing the exam. So I don't recommend to take your books to the examination center and just turn the pages 5 or 10 minutes before the exam. No, you should never do that. It stresses your mind and it creates a stress pressure, because of which you panic during the exam, and while seeing the question paper you think I have forgotten everything. So please do not do that. See, what I recommend, एग्जाम के 2 दिन 4 दिन पहले जो फाइनल रिविजन करते हैं उस वक्त keep one sheet of paper with you and note down the important things. Just one sheet of paper, just one, not more than that, and note down the important things which according to you is something to be referred before exam. So just note down those things in that one sheet of paper and carry that sheet of paper to your examination center, and you can read this. Do not carry the whole textbook or notebooks or whole set of notes with you. Just carry that one single sheet of paper in which you have noted down the important points just 2 or 3 days before exams. I recommend this, and that will surely help you in your exam. अगर उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में से कोई क्वेश्चन ना भी आए तो एटलीस्ट आपका स्ट्रेस लेवल भी नहीं बढ़ाएगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो दिस. नेक्स्ट इज योर हॉल टिकट और योर एडमिट कार्ड. प्लीज़ कीप 2 to 3 कॉपीज ऑफ योर एडमिट कार्ड हैंडी. ओके, दैट मीन्स सिर्फ एक एडमिट कार्ड मत रखिए, 2 से 3 एडमिट कार्ड रखिए. इन केस आपकी एडमिट कार्ड गुम हो गई या कुछ भी हो गई, उसमें इंक गिर गया या वट एवर हैपन्स, आपके पास दूसरी कॉपी हमेशा हैंडी रहनी चाहिए. ओके, एग्जामिनेशन सेंटर से निकलते ही पुट दैट एडमिट कार्ड अगेन इन योर बैग्स. सो उसको निकाल के इधर उधर मत रखो, डायरेक्ट बैग में रखो, बैग से निकालो वापस उसी में रखो. ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स. ये भी मैंने हमेशा देखा है, जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो वहाँ पे ग्रुप्स बने होते थे काफ़ी सारे, एंड सब बात कर रहे हैं आराम से. कुछ तो बुक्स लेके कर रहे हैं एंड कुछ बात कर रहे हैं ग्रुप बना के. सो दिस इज़ नॉट एट ऑल करेक्ट. एग्ज़ाम के पहले अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ोगे वो भी अच्छा नहीं है, और एग्ज़ाम के पहले अगर आप ऐसे ग्रुप बना के चिल करोगे वो भी अच्छा नहीं है. दोनों ही नॉट गुड. ऐसे चिल करने से क्या है, आपका माइंड कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स होता है. उसको थोड़ा सा भी अगर टेंशन नहीं होगा तो वो एग्ज़ाम में परफॉर्म कैसे करेगा. सो इतना चिल भी नहीं होना है एंड इतना भी नहीं घुस जाना है कि वो एक्सट्रीम स्ट्रेस हो जाए. तो दोनों को बैलेंस करके चलना है. हाँ, एंड वन मोर थिंग, अगर आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हो बिफोर एग्जाम्स, प्लीज़ टेक अ नोट कि आप पॉजिटिव वाइब्स, जिनसे पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है उनसे बात करें, उन फ्रेंड से बात करें. उनसे नहीं जो आपको पूछ रहे तेरी प्रिपरेशन कितनी हुई, मैंने इतनी कर ली.
एंड वो आपको बता रहे हैं कि दे प्रिपेयर्ड सो वेल एंड दे आर सो कॉन्फिडेंट एंड ऑल, सो उन लोगों से बात ना करें बिकॉज उनकी बातें ही आपको एक मेंटल प्रेशर दे देगी। सो प्लीज़ मैं रेकमेंड करती हूँ कि बात ना ही करें किसी फ्रेंड से एग्जाम के पहले भी और एग्जाम के बाद भी, बट स्टिल आपको बात करनी ही है तो एग्जाम से रिलेटेड ज़्यादा बात मत करो और बहुत ज़्यादा चिलिंग वाली बातें भी मत करो। नॉर्मल, कीप योर कॉन्वर्सेशंस नॉर्मल बिफोर योर एग्जाम। Next is keep your mind free at least 5 minutes before your exam. Bell ring हो चुका है तब भी you're into your books. This is not correct. This is not correct. 5 मिनट पहले get into the classroom and settle down. Close your eyes and repeat. जितना भी preparation हुआ अच्छे से हो. Okay, do not panic. Calm your mind 5 minutes before writing the paper. Okay, these were some points which needs to be taken care of before the exam. Now let's discuss the points which need to be taken care of during the exam. First is your water bottles. प्लीज़ कैरी योर ओन वाटर बॉटल्स। बहुत सारे सेंटर्स में ऐसा होता है कि वो लोग पानी की ग्लास प्रोवाइड नहीं करते। यू नीड टू गो आउट टू ड्रिंक वाटर। सो उसमें क्या है ना, आपका टाइम भी वेस्ट होता है एंड सेकेंडली आप जो कॉन्सेंट्रेशन से लिख रहे हो वो कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होती है बिकॉज काफ़ी लोग को नर्वसनेस से प्यास भी लगती रहती है। ओके, सो प्लीज़ कैरी योर ओन बॉटल्स। ट्राई कि आप लेमन वाटर या ग्लूकोज वाटर लेके जा सको तो आपको एक एनर्जी भी मिलती रहेगी। ओके, सो प्लीज़ कैरी योर ओन वाटर बॉटल। सेकेंड इज ज्योमेट्री बॉक्स। ये भी मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग पॉकेट में पेन्स रख के लेके जा रहे हैं। प्लीज़ डोंट टेक द एग्जाम सो कैजुअली। कैरी योर ओन ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें सारी स्टेशनरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको एक भी चीज़ किसी से मांगनी पड़ जाए। इसमें सामने वाले का भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और खुद का भी कर रहे हो। सो प्लीज़ कैरी योर ओन ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें एटलीस्ट 3 पेन, 2 पेंसिल, शार्पन्ड पेंसिल, फिर भी शार्पनर रखो, इरेजर रखो, स्केल रखो, ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए आपके पास। नेक्स्ट इज वाइटनर। मोस्ट ऑफ अस डू नॉट कैरी वाइटनर्स बट आई रेकमेंड वाइटनर कैरी करो कि लिखते लिखते कब हमसे मिस्टेक हो जाएगी वी डोंट नो एंड देन हमें वाइटनर खोजने के लिए अपने 5 मिनट वेस्ट करने पड़ेंगे। सो बेटर जो भी चीज़ की ज़रूरत लगे आप अपने पास रख लो, हैंडी रखो कि आपको किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। जब यूज़ हो आप अपना यूज़ कर लो। नेक्स्ट इज क्लोथ्स। ये बहुत बेसिक सी चीज़ मैं बता रही हूँ, बतानी भी नहीं चाहिए बट स्टिल यू नो व्हाट, मैं एक बार अपनी एग्ज़ाम देने गई थी। आई सॉ अ गर्ल, ये मेरा जून वाला अटेम्प्ट था जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एंड दैट गर्ल वॉज वेयरिंग समथिंग फॉर्मल, जैसा मैंने पहन रखा है समथिंग फॉर्मल, एंड ऊपर से ब्लेजर भी था, नीचे फॉर्मल पैंट्स थे एंड हर हेयर वॉज ओपन एंड मतलब उसको देख के मुझे स्वेटिंग हो रही थी। ओके, एंड ऑब्वियसली ऐसे कपड़े पहन के वो खुद कंफर्टेबल कैसे हो सकती है बिकॉज यू नो राइट, एग्जामिनेशन सेंटर्स एसी प्रोवाइड नहीं करते, फैंस रहते हैं, उसमें भी इतनी गर्मी लगती है एंड प्लस एग्जाम का टेंशन, हाथ में पसीना, क्या क्या होता है, माय गॉड। सो टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स कि आप उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए। आपको फैशन शो में नहीं जाना है, आपको दिखाने नहीं जाना है किसी को, आपको एग्जाम देने जाना है। सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर कंफर्ट फर्स्ट। भले ही वो कुर्ता पजामा ही क्यों ना हो, आप अगर कंफर्टेबल हो तो आप वो पहन के जा सकते हो, नो इश्यूज। आप कंफर्टेबल होने चाहिए। 3 घंटे आपको यूटिलाइज करना है, एक एक सेकेंड आपके लिए प्रेशियस है, देखने वाले के लिए नहीं है। सो प्लीज कीप योर ड्रेसिंग कंफर्टेबल फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट इज रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। Those 15 minutes can change the future for you. See, 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया होता है बट आई रेकमेंड आप उसको 25 मिनट तक कर सकते हो। आपने अगर क्वेश्चन सही समझे हैं ना देन आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको क्वेश्चन सही से समझ आना चाहिए और उस हिसाब से यू नीड टू आंसर। ओके, द क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डज नॉट मैटर। तो ऐसा नहीं है कि आप 4 पेज भर भर के लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन है और उसमें टू द पॉइंट अगर आप 2 पैराग्राफ भी लिखोगे ना तो भी आपको 4 मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो इसीलिए रीडिंग टाइम में कीप अ पेंसिल विथ यू एंड सारे क्वेश्चंस रीड करते जाओ अच्छे से एंड क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना उसको सर्कल कर दो कि एटलीस्ट आप दोबारा जब इसको लिखना शुरू करोगे तो वो पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। ओके, एंड वन मोर थिंग, जो ऑप्शनल आते हैं आई हैव सीन कुछ बच्चे हड़बड़ी में और दोनों ऑप्शंस आंसर कर देते हैं, बाद में उनको समझ आता है कि अरे ये तो ऑप्शनल था एंड आई हैव रिटन बोथ। सो रीडिंग टाइम में ही वो जो और बीच में लिखे रहता है उसको बड़ा सा सर्कल कर दो कि आप दोबारा जब यहाँ आओ तो देखो कि इधर और है एंड आपको 2 में से एक ही आंसर करनी है। सो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत बार तो गलत समझ के गलत लिख डालते हैं फिर बोलते पास नहीं हुए, सो ये गलत बात है। You need to understand the question correctly to write the answers correctly.
ओके, नेक्स्ट इज ऑलवेज स्टार्ट द न्यू आंसर विद अ फ्रेश पेज। आपकी आंसर अगर शुरू की 4 लाइन में ही खत्म हो गई है तो ऐसे नहीं कि आप नीचे से शुरू कर दो, नहीं, भले ही वो पूरा पेज बच गया, स्टिल स्टार्ट विद अ न्यू पेज। एंड हर पेज में ट्राई टू लीव लास्ट 4 लाइन्स ब्लैंक। ओके, पूरा नीचे तक आप लास्ट लाइन तक आंसर मत लिखो, ट्राई टू लीव दैट 3 to 4 लाइन्स ब्लैंक, सो दैट जो पेपर चेकर होंगे उनको वो स्पेस मिलेगा अपनी कमेंट्स वगैरह लिखने के। एंड करेक्ट नंबरिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। आप नंबर्स तो एकदम ध्यान से लिखना कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, वो नंबर गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर पेपर चेकर को ऐसा लगा कि आपने क्वेश्चन का नंबर कोई और दिया है, आंसर कहीं और है, तो वो खोजेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। He'll just put 0 there. So please do not make mistake while writing the numbers. और ट्राई करो इफ़ यू गेट सम टाइम एट दी एंड तो हर आंसर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अंडरलाइन कर दो। ओके, ज़्यादा भी टाइम नहीं इन्वेस्ट करना, आई एम नॉट सेइंग दैट, जस्ट गिव 2 to 3 मिनट्स की आपको जो समझ आए कि क्वेश्चन ने पूछा है और जो टू द पॉइंट आपको पार्ट लग रहा है वो पार्ट बस अंडरलाइन कर दो हर आंसर में। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Fill in your details correctly। ऐसे हड़बड़ी में, पैनिक में, do not make a mistake while writing your roll numbers। So इसको तो 2 बार 3 बार चेक ज़रूर कर लेना कि रोल नंबर और बाकी सारे आपके डिटेल्स वो सारे करेक्टली फिल्ड है या नहीं है। एंड जो फर्स्ट पेज में पूछते हैं कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है, उसके बगल में आपको टिक करना होता है, वो भी आप 2 से 3 बार रिचेक कर लेना कि आपने सब में टिक किया है कि नहीं किया है। Next is handwriting. See, your handwriting should be even throughout your answer sheet। I said even, I didn't say it should be beautiful। It should be even। ऐसे नहीं कि हमने स्टार्ट किया, बहुत टाइम लिख रहा है तो आराम से एकदम धीरे धीरे हैंडराइटिंग बिठा बिठा के लिख रहे हैं, बाद में फिर रश करके कैसे भी हौच पौच घिच पिच कर दिए। नो, जो है इवन है। शुरू से आप हाथ पे टाइम लेके चलो कि मुझे इस स्पीड से लिखना है, एंड तक इसी स्पीड में लिखना है। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में अच्छा और बाद में बुरा हो गया, नहीं, पूरा इवन होना चाहिए हैंडराइटिंग। एग्जाम के लिए जो आप पेन कैरी करोगे वो सेम ब्रांड की सेम पेन ही कैरी करना, जो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सब सेम होनी चाहिए। बिकॉज ब्रांड के हिसाब से पेन के कलर्स, पेन के इंक के कलर्स चेंज होते हैं, तो आपके पेपर में अलग अलग इंक नहीं दिखना चाहिए। तो इसीलिए आप जो पेन कैरी कर रहे हो वैसी ही सारी पेन्स होनी चाहिए आपके बॉक्स में। एंड यूज अ सिंगल कलर पेन ओनली, ब्लैक या ब्लू, एक ही पेन से लिखना पूरा आंसर शीट। आपको अंडरलाइन पेंसिल से करना है, एंड यहाँ पे कलरफुल प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बना देना आंसर शीट को। जस्ट यूज 1 पेन एंड 1 पेंसिल, दैट्स इट। वॉच कैरी करना इज अ मस्ट। वॉच रहेगा तो आपको टाइम का अंदाज़ा रहेगा, सो एवरीवन हैज़ टू कैरी अ वॉच, बट प्लीज़ मेक श्योर आपको स्मार्ट वॉचेस कैरी नहीं करना है। सो स्मार्ट वॉचेस एंड मोबाइल फोन्स, प्लीज़ डू नॉट कैरी देम टू योर एग्जामिनेशन सेंटर्स। बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपके हाथ में स्मार्ट वॉच हो तो वो लोग आपको निकाल देंगे, नो, बट बाय द वे अगर ऐसा कुछ हुआ कि उन्हें कुछ डाउट हो गया तो उनके पास एक पॉइंट होगा आपको निकाल देने का। सो प्लीज़ डो नॉट गिव देम एनी पॉइंट्स। तो आप सिंपल सा वॉच कैरी करना, और अगर फ़ोन्स आप लेके जा रहे हो वो फ़ोन्स आप अपने बैग में ही रख के एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना। ओके, नेक्स्ट इज, अगर आपको नहीं आता है कुछ तो ऐसे नहीं कि आप इधर उधर देख रहे हो, इधर उधर तो बिल्कुल ही नहीं देखना है। आपने एक साल मेहनत करी है, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, आपको कुछ तो आएगा ही समझ में, एंड जितना आता है उतना लिख दो। ट्राई टू अटेम्प्ट, अगर आपके पास टाइम है तो वेस्ट नहीं करना, ट्राई टू अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन। कुछ तो आपको याद आएगा ही क्वेश्चन देख के, तो आप उतना ही लिख देना, बट लिख डोंट लुक हियर एंड देयर कि आप विजिलेटर्स डायरेक्टली नोटिस करिए। नेक्स्ट इज स्ट्राइक ऑफ करेक्टली। आपको अपने आंसर पेपर में हौच पौच घिच पिच नहीं करना है, तो आपको बस नीटली एक बीच से लाइन करके उसे क्रॉस कर देना है। फाइन। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं, सो जो कैलकुलेटर से आपने प्रैक्टिस की है, जो कैलकुलेटर से आप प्रैक्टिस करते आए हो हमेशा, वही कैलकुलेटर कैरी करना है एग्जाम में। न्यू कैलकुलेटर ट्राई करने का सोचना भी मत, बिकॉज यू नेवर नो कि कैलकुलेटर की कीज़ कैसे काम कर रहे हैं, या फिर उनकी कीज़ इधर उधर है कि क्या है, यू डोंट नो। तो आप जो कैलकुलेटर यूज़ करते हो वही वाला कैलकुलेटर कैरी करना हमेशा। ओके, नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा पेज। इफ़ यू फील यू नीड एन एक्स्ट्रा पेज, आस्क फॉर इट बिफोर हैंड। लास्ट पेज की लास्ट लाइन तक पहुंचने का वेट मत करना, बिकॉज एक्स्ट्रा पेज देने में वो लोग काफ़ी वक्त लगाते हैं। ओके, समटाइम्स दे टेक 5 to 10 minutes to give you an extra sheet, so please ask for the extra sheet if you feel the need when you are on the second last page itself। okay, लास्ट इज स्वेटी हैंड। ये तो सब जानते हैं, हमारे समर वाले जो पेपर्स होते हैं मई जून में, उसमें सबके हैंड्स स्वेट करते हैं, पेन फिसलता है, और फिर लिखने में ऐसी पैनिक में रहते हैं, ऐसी मेंटल स्ट्रेस रहता है, और ऊपर से पसीने से हाथ फिसलता है। माय गॉड, दैट्स डेडली कॉम्बिनेशन देयर। सो
ट्राई करो कि आप ग्रिपर वाली पेन यूज़ करो, उसमें आपका हाथ नहीं फिसलेगा एंड आपका वो बैलेंस बने रहेगा। भले आपकी हैंड स्वेटी होंगे, लेकिन क्या है, वो ग्रिपर पेन से आपका ग्रिप नहीं छूटेगा। एंड कैरी पाउडर इन योर हैंकरचिफ, और हाथ में पाउडर लगाते रहो फ्रीक्वेंटली, और वो ग्रिपर पेन यूज़ करो, इट विल हेल्प यू। 3 घंटा तो निकालना है, एंड से निकल जाएगा। ओके, सो दीज वर दी ड्यूरिंग एग्जाम टिप्स। नाउ लास्ट पोस्ट एग्जाम टिप। इसमें सिर्फ एक ही है, एग्जाम के बाद प्लीज डू नॉट डिस्कस योर पेपर विद योर फ्रेंड्स। डू नॉट डिस्कस। इससे क्या है ना, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव इम्पैक्ट। जैसे कि अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आप जिस फ्रेंड को बता रहे हो आंसर्स, उसका अगर गलत हुआ तो उसका बर्बाद हो जाएगा आगे का। अगर उसका अच्छा हुआ है तो आपका बर्बाद हो जाएगा। सो बेटर कि मत डिस्कस करो। एग्जाम पूरा खत्म होने का वेट करो, लास्ट एग्जाम के दिन आप सारे पेपर्स एक साथ डिस्कस कर लो। बट हर एग्जाम के बाद डू नॉट डिस्कस दी पेपर्स विद योर फ्रेंड्स एंड नोन वंस। ओके, सो दीज वर दी प्री एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम एंड पोस्ट एग्जाम टिप. I'm sure if you'll follow all these tips, it will prove extremely beneficial for you all. If you like this video, please do share it with your friends, and please like the video and subscribe the channel. Thank you so much.